सपना पूरा होगा तो आपकी आने वाली नस्ल का भी सपना पूरा होगा। बीजापुर की ही बात करूंगा तो कई बेटियां आपको मिलेंगी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है मगर उनकी अभी शादी नहीं हुई है। एक महीना बीत नहीं जाता कि हमारे बच्चों का किसी ना किसी हादसे में वो शिकार हो जाते हैं, किसी ना किसी नशे की आदि में वो किसी को मारते हैं। तो ये भी बहुत अहम जरूरत है कि हम एजुकेशन के साथ अपने बच्चों की हिफाजत भी करें। अगर आपसे हिम्मत नहीं हो रही तो शकील बागमारे जिंदा है, मुझसे कहिए, इंशाअल्लाह मैं खुद उन नंदों को बंद करने की कोशिश करूंगा। وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ صدر جلسہ انتہائی قابل قدر میرے استاد محترم عبدالنبی جمعدار صاحب اور آج کے خاص مہمان تاریخی شہر بیجاپور کے مشہور و معروف شخصیت نوجوان لیڈر میری مراد شکیل باغمارے صاحب اور ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لانے والے ہمارے اس علاقے کے کارپوریٹر علی جناب جمیل بانگی صاحب اور محمد جنات کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور ہمارے آج کے اس تہنیتی پروگرام کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لانے والے تمام نوجوان بزرگان اور سبھی دوستوں کہتے ہوئے تشریف لانے والے تشریف لے آپ کا ہم مستقبل گل پیش کریں سے محمد جنات کمیٹی کے کسی طرح سے کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے محمد کسی طرح سے اور محمد جنات کمیٹی کے کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں الیاس نائک سر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ گل پیش کریں۔ یہ کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے میں میرے محترم جناب سراج جمکڑی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند خیالات اپنے پیش کریں۔ معلوم ہے تہذیب و تمدن کیا ہے جب سے تاریخ کے اوراق کو نچوڑا ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ تاریخ کے اوراق نچوڑنے کے بعد ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ کون سے مقصد ہمارے ہونا چاہیے۔ اسی لیے محمد جنات کمیٹی نے ویژن 2030 رکھا۔ ہمارا مقصد یہ ہے اتیت کو سنمان ہو، ورتمان کو سمادھان ہو اور بھوش کو دشا نردیش، یہ ہمارے آبجیکٹس ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اتیت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم روز نیوز میں سن رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک بڑی شخصیت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا نام تم نے سنا ہے؟ عجیب بات ہے، یہ ہمارے اتیت ہیں، ہم نے ان کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے اتیت کو جانیں، ان کے تاریخوں کو پڑھیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتا دوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب میری اس بات کو سنیں گے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہندوستان، اس عظیم ہندوستان پہ حکومت کیا۔ انہوں نے جب حکومت کر رہے تھے انصاف پسند تھے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم نے سنا بھی ہے کہ وہ اپنی گزارا ٹوپیاں سی کر بیچ کر گزارا کرتے تھے، پرانے مسجد اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایسی بڑی عظیم شخصیت پہ آج الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ بات اور ہے کہ تاریخ کے اوراق میں کچھ اور ہے۔ ضروری ہے کہ ان کی اچھائی کو بھی ہم دیکھیں، کم سے کم ہمیں تو اس بات کو پتا ہونا چاہیے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کیا تھے۔ ایک بار اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے استاد ملا احمدی آئے، ان کی بہت کستہ حالت تھی، بہت بری حالت تھی۔ انہوں نے کہا اورنگزیب سے
उस्ताद है औरंगजेब के कि आज मेरी हालत बहुत कस्ता है। तो औरंगजेब ने, देखिए उस जमाने का बादशाह उस्ताद उनके पास आए हुए हैं, उन्होंने उन्हें जब जरूरत उन्होंने रखा उनके सामने, औरंगजेब साहब के सामने, तो उन्होंने 50 पैसे दिया। जब उनके उस्ताद उनके पास पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें 50 पैसे दिया। 50 पैसे मांगता तो वो जो चाहे वो देख सकते थे, दुनिया का था उनके पास, सोना लादा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने उस्ताद को सिर्फ 50 पैसे दिए। उन्होंने वो 50 पैसे लिया, कुछ बीज खरीदे, बोया, कपास उगाया, उसके बाद अच्छी इनकम हुई, इतना अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए, आसपास के सब खेत खरीदने लगे। वो एक दिन ऐसे 10 साल तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जंग के लिए गए थे। जब 10 साल के बाद वो वापस आए, 10 साल के बाद जब वो वापस आए तो अजीब बात हुई, उनके मिनिस्टर को पूछा गया, बोले सबका हिसाब करो। तो उन्होंने बोला, मिनिस्टर ने कहा, साहब आपके उस्ताद के पास बहुत दौलत है, उनके पास बहुत दौलत है, बहुत दौलत है। तो बोले वो तो बहुत बुरी हालत में जब मेरे पास आए थे। तो बुलाओ उनको, बुलाया गया, पूछा उनसे कि आप दौलत कैसे करें। तो उन्होंने कहा आपने 50 पैसे दिए थे, मैंने उससे बीज खरीदा और बीज बोया और मैंने फसल ली, फसल पे फसल लेते गई, मैंने इस तरीके से बहुत कमाया। फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दिल्ली के एक कोने में एक बनिया रहता है, उस बनिया को बुलाओ, उसका हिसाब लेना है। वजीर बुलाया बनिया को, बनिया ने पूरा हिसाब लेकर आया, बताया कि मैंने ये खर्च किया है, मैंने ये खरीदा और ये खर्च किया है। उस बनिया के हिसाब में 1 रुपए का फर्क आ रहा था, उस बनिया के हिसाब में 1 रुपए का फर्क आ रहा था। पूछा कि 1 रुपया कहाँ है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि वो 1 रुपया कहाँ है। उन्हें बोला, साहब वो 1 रुपया जो है, मेरा घर जो है बारिश की वजह से चीरा था, मैं उसकी रिपेयरिंग के लिए मैं बहुत से लोगों को ढूंढा, रात में एक शख्स मिला मुझे, मैंने उससे पूछा कि हाँ साहब मेरे घर का रिपेयरिंग करेंगे। तो बोले हाँ ठीक है, तुम कितने लेंगे। उसने बोला कि मैं 1 रुपया ले लूंगा, लेकिन उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है कि मैं नमाज से पहले मुझे यहाँ से रवाना करना चाहिए। तो वो आदमी मान गया, वो बनिया मान गया, उन्हें काम लगाया उस काम वाले को और रिपेयरिंग किया। जैसे ही अजान हुई वो छोड़ के निकल गया, छोड़ के जा रहा था तो उस बनिया ने पूछा कि आप थोड़ा काम छोड़े हुए हैं। तो बोले ठीक है, 50 पैसे दो और 50 जो है मुझे काम होने के बाद दो। अजीब बात है, 50 पैसे दिया गया, वो लेकर चले गए। फिर बात यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है बात कि हमारी तारीख को क्यों समझना चाहिए, हमारे अतीत को क्यों समझना चाहिए। पूछा, तुम्हें मालूम है बनिया, तुमने जो रिपेयरिंग करने के लिए तुम्हारे पास जो गौंडी आया था, काम करने के लिए आया था, वो कौन था? वो कोई और नहीं था, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसने सही रिपेयरिंग किया था। वो 50 पैसे उन्होंने उस्ताद को दिया, अपनी मेहनत के थे। वो मेहनत के पैसे हर बार अच्छे काम के लिए लगते हैं तो उसका दौलत 2-4 कदम बढ़ जाती है। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे। इसीलिए हमारे तारीख को जानना हमें बहुत जरूरी है। हमने हमारा मिशन, हमारा विजन रखा कि विजन 2030 तक हमारे जितने भी लोग जिन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, जितने भी लोग हमारे इस देश की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, जितने भी हमारे लोग अच्छे काम किए हुए, हमें उनकी तारीख को जानना है। इसीलिए मैंने अतीत को सम्मान कहा, वर्तमान को समाधान। हमारे नौजवान आज जान रहे हैं कि हमारे नौजवानों की क्या हालात हो रहे हैं। इसलिए आपको इस बात का पता होगा, हमारे बीच मौजूद शकील भागबारे साहब ने एक आवाज उठाई थी। नतीजा महकमा पुलिस डिपार्टमेंट वाले जाग गए, अरेस्ट किया उन लोगों को जो खुलेआम गांजा बेचा करते थे। आज जरूरत है कि हमारे नौजवान को वर्तमान को समाधान चाहिए इन बच्चों को, और हमारे बीच मौजूद है वो भविष्य हमारे बच्चों के रूप में। इन भविष्य को दिशा निर्देश चाहिए। हमने इस दिशा निर्देश देने के लिए ये काम शुरू किया है। हमारे बच्चे एसएसएलसी में फेल ना हो,
फेल अगर होंगे तो वो और गलत रास्ता निकालेंगे, इसलिए हमने ये चुना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे इस SSLC एग्जामिनेशन में पास होंगे और आगे जाएंगे। हमारे मकसद अकाज़ मकासद हमारी ये है कि फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और इमोशनली बैलेंस होना चाहिए। मेरा ये मुल्क विश्व गुरु बनना है। अगर विश्व गुरु बनना है तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि इसे हमारे इस मोहल्ले को शहर की रोशनी बनाना है। अगर ये मेरा मोहल्ला शहर की रोशनी बनेगा तो यकीन मानिए कि मेरा मुल्क विश्व गुरु बनेगा। मेरे मुल्क को विश्व गुरु बनाने के लिए, मेरे इस मोहल्ले को शहर की रोशनी बनाने के लिए मोहम्मदिया नाथ कमेटी ने अपना विजन रखा है, अपना सपना रखा है। और मोहम्मदिया नाथ कमेटी के हम चाह रहे हैं कि विजन 2030 में 30 तक हम चाहते हैं कि हमारा स्टडी सेंटर हो, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्टडी सेंटर हो। हम चाह रहे हैं कि हमने अभी हमारे पीर अहमद साहब हमारे बीच मौजूद है, हेडअगली साहब, वहां हमने मोहल्ला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी खोला है। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोने कोने में, कॉर्नर्स में चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हो, ताकि बच्चों के वेलफेयर के लिए हम काम कर सके। ये हमारे मुल्क की दौलत है। हम चाह रहे हैं कि मैं हमारे बीच मौजूद अंगड़ी साहब से मैंने इस बात का जिक्र किया था, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन अपने हक को समझे, ये आने वाली जनरेशन सच्चाई समझे, ये आने वाली जनरेशन बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को समझे और अपने हक की मांग रखे। इसलिए हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस हमारे बच्चों में हो। हम बेसिक एजुकेशनल सेंटर खोलना चाहते हैं। मैंने अबू बकर अंबर खानी साहब से बहुत बार इस ताल्लुक से डिस्कशन किया। हमारी बुनियाद कमजोर है, हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत से कठिनाई आते हैं। ये बताना, ये बात नहीं है कि हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं आता, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बहुत पीछे हो रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन हमारे बच्चों को होना चाहिए। अबू बकर अंबर साहब ने कहा कि सर हम लोग ये शुरू करेंगे, कि ये हमारा विजन 2030 है। हम चाह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में विजुअल लाइब्रेरी हो, ताकि हमें हमारी तारीख को समझे, हमारे इस मुल्क की तरक्की के लिए हमारे तारीख को समझे। जब हम तारीख को समझेंगे तो यकीनन हम मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान देंगे। हमें हमारे इस देश के लिए योगदान देना है। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों में फिजिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लीडर बने। लीडर बनने के लिए उन्हें क्वालिटी पैदा करना है। उसके लिए हम जमात अफसर और मैं मिला के इसके ताल्लुक से हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे बच्चा जब ठहरता है तो बेबाक बात करने की तैयारी हो जाए। हमने ये मोहम्मदिया नाथ कमेटी 40 साल से हम ये काम कर रहे हैं, नाथ का प्रोग्राम करें ताकि बच्चा स्टेज पे आके खड़ा होकर बात करें। हम और चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बेबाक बोलने वाला बने, और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज हो। आखिर में मैं अपनी बात बहुत तूल ना देते हुए एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। सिवा अपने बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे हम सियासतदान बोलेंगे, वो ये कर रहे हैं, सिवा अपने किसी को राजदार होने नहीं देते। सिवा अपने वो किसी को राजदार होने नहीं देते, वो आग ऐसी लगाते हैं धुआं होने नहीं देते। सिवा अपने वो किसी को राजदार होने नहीं देते, वो आग ऐसी लगाते हैं धुआं होने नहीं देते। गिला इस बात का नहीं कि मेहरबान होते नहीं हम पर, गिला इस बात का नहीं कि मेहरबान होते नहीं हम पर, गिला इस बात का है कि मेहरबान होने नहीं देते, मेहरबान होने नहीं देते। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। कमेटी की जानिब से इनकी खिदमत में पेश की जा रही है और हमारे दरमियान ये तशरीफ फरमा है। तहनीयत इनके लिए इसलिए पेश की जा रही है कि एक छोटा सा इनका मुख्तसर तारुफ ये है, साथ हम आपकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करते हैं। जनाब शकील बागमारे साहब की खिदमत में तहनीयत पेश की जा रही है। शकील बागमारे साहब की खिदमत में हम दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। 2 महीने में आप वजीफायाब हो रहे हैं। मैं मोहम्मद हुसैन डोनी साहब का दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबादी। इसी के दम से चमन सरसब्ज है, शादाब है, आबाद है। जोरदार तालियां इन्हें साथ जाएगा हम खिदमत को। हमारे उस्ताद मोहतरम सिराज जमकंडी साहब का हम खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये आप ही की मेहनत है और हर ऐसे काम में आप जुड़े रहते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अबू अम्मार खानी की जिंदगी में खैर और बरकत अता करे। जो क्लिप पर दिया जा रहा है वो हमारे नवाज खान पठान की जानिब से। पहले तो मैं तमाम मोहम्मदिया कमेटी के जिम्मेदारों को दिल के गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये सिलसिला जो इन्होंने जो अंधेरे में रोशनी का चिराग जगाया है, इल्म का चिराग, वो चिराग हमेशा हमारे कौम और मिल्लत के लिए ये चिराग इनका जलता रहे। और हमेशा मैं अल्लाह से यही चाहूँगा कि ये जो रहनुमा हैं
ये सिर्फ रहनुमा नहीं बल्कि हमारे इल्म के रहबर हैं। तो अगर कोई लक़ब देने की ताकत रखता तो मैं इन नाज कमेटी के सभी सदस्यों को रहनुमाए इल्म कहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सच में रहनुमाए इल्म हैं, जो आपने 40 साल से इस खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। नात की जानिब से हो या इल्म के किसी ना किसी कोने से आप अपनी सलाहियत को नौजवानों में उभारते आ रहे हैं। और अल्लाह ताला, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपसे जो काम ले रहा है, आपके आने वाले नस्लों से भी ये काम ले, क्योंकि मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर कौन सा भी सोशल वर्क है यानी समाज सेवा है, तो मैं समझता हूँ इल्म से बढ़कर कोई समाज सेवा नहीं है। इल्म देना ही आज सबसे बड़ी समाज सेवा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सभी से कहूँगा कि खास हमारे इन रहनुमाओं के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनसे काम ले। मैं फिर से जो इनका सपना है विजन 30, इंशाअल्लाह जो सपना इन्होंने देखा है, अल्लाह ताला इस सपने को पूरा करे, इनके हयात में पूरा करे और ये हमेशा हम पर रहनुमा की तरह इल्म के रहनुमा बनकर हमारे ऊपर कायम रहे। तो मैं यही कहूँगा, जो 10th के बच्चों के लिए इन्होंने कोशिश की है, 10th का कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो ख्वाहिश है इंशाअल्लाह वो जरूर पूरी होगी। मैं मोहल्ले वालों से भी कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर ऐसी मुहिम में जो बिना किसी फायदे के लिए सेवा दे रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो आगे आ रहे हैं, यही असल में हमारे रहनुमा हैं। याद रखिए, इन रहनुमाओं ने जो अपने कुर्बानी देकर यहाँ पर जो हमारे 4 टीचर्स को जो इज्जत दी गई है, वो इससे भी बढ़कर मैं समझता हूँ कि आप इज्जत के हकदार हैं, क्योंकि आपने अपना टाइम देना कोई मामूली बात नहीं है जो आज आप अपना टाइम दे रहे हैं। तो मैं इस मोहल्ले के जिम्मेदारों से कहूँगा, इस मोहल्ले के नौजवानों से कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने बच्चों को, खास करके जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है आपके बच्चों के भविष्य के लिए, कि आप कभी ड्रॉप आउट ना हो और अल्लाह ताला आपको कामयाबी की सीढ़ी बढ़ाए। और अल्लाह ताला जो आपके माँ बाप ने जो बच्चों के लिए सपना देखा है, वो सपना पूरा हो। आज एज ए जर्नलिस्ट मैं ये भी कहूँगा कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे जैसे ही 10th फेल हो जाते हैं तो काफी नाराज हो जाते हैं और छोटे मोटे धंधे में लग जाते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा नाराज ना हो, क्योंकि अक्सर छोटे मोटे धंधे से आपकी जो माँ बाप ने जो आपके लिए जो सपना देखा था, वो सपना टूट जाएगा। अगर आप और ज्यादा मेहनत करेंगे, ऐसे रहनुमाओं के पास आएंगे, ऐसे उस्तादों के पास आएंगे, आप कोशिश करेंगे, तो जरूर आप कामयाब होंगे और आपका माँ बाप का सपना आप पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, जब आपका सपना पूरा होगा तो आपकी आने वाली नस्ल का भी सपना पूरा होगा। जब आप छोटे मोटे कारोबार में लग जाओगे तो आपकी आने वाली नस्ल भी उसी में लग जाएगी। इसीलिए बदलाव आना जरूरी है। मैं दोबारा इन महान व्यक्तियों को इस स्टेज से इन्हें मुबारकबाद देता हूं, जो इन्होंने यही सपना देखा है 2030 का कि हमारा बच्चा कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता जाए और बढ़ता जाए। मैं दोबारा इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए ये कहूंगा, साथ ही साथ मैं मेरे बड़े भाई जमादार साहब से ये कहूंगा कि यहाँ पर कहना जरूरी नहीं है, मगर ये भी हकीकत है कि हमारे बेटियों को हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हमारी बेटियां ज्यादा पढ़ी लिखी हो रही हैं, बड़े बड़े ओहदे पर जा रही हैं। यहाँ तक कि हमारी बेटियां डीसी, एसपी तक बन जा रही हैं, आईएएस हो रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर जा रहे हैं। मगर हमारे बेटियां का एक प्रॉब्लम ये है, जो हमारे जिम्मेदार हैं वो बेटियां के लेवल के लड़के उन्हें देख रहे हैं और उनकी उम्र चली जा रही है। ये हकीकत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जितने जल्दी हो अपने बच्चों का निकाह कर दें। तो उम्र बीतने, यानी कि आपने उनको पढ़ाया लिखाया, उनको उस काबिल बनाया और वो अपने ओहदे पर भी जाकर पहुंचे और उनको भी इज्जत मिली, आपको भी इज्जत मिली। मगर हकीकत जो औरत को जो इज्जत चाहिए वो इज्जत माँ बाप दे नहीं पा रहे। जब उम्र चली जाती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस बच्ची पर क्या बीतती होगी। जब आप उस बच्ची के लेवल का आदमी देखेंगे तो वो लेवल नहीं मिलता और उम्र 40 साल 45, ऐसे में बीजापुर की ही बात करूंगा तो कई बेटियां आपको मिलेंगी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मगर उनकी अभी शादी नहीं हुई है।
तो ये भी हमारे माशरे में मैं समझता हूँ कि जरी सी बुराई है, हमें इसे भी दूर करने की जरूरत है। हमें सिर्फ उनके लेवल के ढूंढने की जरूरत नहीं, हमें अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, ऐसे लोगों को भी अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी उन बहनों की भी जिंदगी संवर जाएगी। सिर्फ कामयाब होने से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी मोहब्बत से भी बनती है, अपनों से भी बनती है। तो मैं, आप बुजुर्ग हैं, मैं बुजुर्गों से कहूंगा अगर किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत अहम जरूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि एजुकेशन के साथ आपकी बच्चों की हिफाजत भी आज बहुत जरूरत है, क्योंकि आप अक्सर देख रहे हैं एक महीना बीत नहीं जाता कि हमारे बच्चों का किसी ना किसी हादसे में वो शिकार हो जाते हैं, किसी ना किसी नशे की आदि में वो किसी को मारते हैं। तो ये भी बहुत अहम जरूरत है कि हम एजुकेशन के साथ अपने बच्चों की हिफाजत भी करें, और उस हिफाजत के लिए आपको अपने बच्चों को ध्यान देना होगा, सोचना होगा कि आपका बच्चा किससे दोस्ती कर रहा है, आपको जानना होगा। और मैं बच्चों से भी कहूंगा कि आपके माँ बाप ने आपको जो प्यार प्यार से पाला होगा, क्योंकि आप उनके आने वाले वक्त में उनका सहारा बनोगे। मगर क्या करें, उन माँ बाप अभी बूढ़े भी नहीं हो रहे और वो बच्चे चले जा रहे हैं, तो ये हमारे माशरे के लिए भी बहुत शर्म की बात है। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपके मोहल्ले में इस तरह के गैर कानूनी धंधे कहीं भी चल रहे हो, अगर आपसे हिम्मत नहीं हो रही तो शकील बागमारे जिंदा है, मुझसे कहिए, इंशाअल्लाह मैं खुद उन धंधों को बंद करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, किसी भी मोहल्ले में किसी तरह का भी गैर कानूनी धंधा हो रहा है और आप उससे डर रहे हैं, तो ये भाई आपका जिंदा है, आप मुझसे कहिए, मैं खुद उस धंधे को बंद करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि बीजापुर में कहीं भी क्राइम ना हो, मैं चाहता हूँ कि बीजापुर शहर में सब अमन और शांति से रहे, कोई भी गंजड़ी ना दिखे, सब अपने शरीयत के हिसाब से चले, बुजुर्गों की इज्जत करें। मैं यही चाहता हूँ, मैं साथ चाहता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर इस बीजापुर शहर को एक आलीशान शहर बनाएंगे, खूबसूरत शहर बनाएंगे, और यहाँ पर जो गैर कानूनी धंधे हो रहे हैं उनके धंधों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। शकील बागमारे कोशिश करेगा, मगर उसका साथ आप ही को देना पड़ेगा। आप जब तक मेरे साथ हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं आपकी आवाज बनकर आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं यही चाहता हूं कि हमारा बीजापुर अमन और शांति से रहे, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम हर एक का तबका एक होकर इस बीजापुर शहर को हम खूबसूरत बनाएं, हर धर्मों का सम्मान करें, हर धर्मों के साथ रहे, यही इस शहर की खूबसूरती है। कुछ नफरती कीड़े हैं, इंशाल्लाह हम उन नफरती कीड़ों की जबान को भी बंद करने की कोशिश करेंगे। हम यही चाहते हैं कि अमन और शांति से रहे। मैं फिर से मोहम्मदिया नाथ कमेटी को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और मैं दोबारा कहता हूं और आपसे भी कहता हूं कि अगर सच में कोई सोशल वर्कर हैं तो यहाँ पर मौजूद मोहम्मदिया नाथ कमेटी के जिम्मेदार हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि इनके लिए दुआ करें कि उनके कौम के बच्चों को सोचना बहुत अहम है, बच्चों की एजुकेशन के लिए आज सोचना बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने इनको चुना है और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। मैं यकीन दिलाता हूँ, मुझसे जो भी होगा इंशाल्लाह, आप जो भी मुझसे काम लेंगे, मेरे हाथ से जो भी बन पड़ेगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा इंशाल्लाह। मैं फिर से, मुझे यहाँ पर बुलाकर दो अल्फाज कहने को कहा और मुझे आपने बुलाकर जो इज्जत अफजाई की, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने इन सियासतदानों से, इन रहनुमानों से, इन सहाफत निगाहों से मैंने जो कलिमा सुने, इस बात से मुझे याद आता है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ला यस्तवील्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलूल अलबाब। इल्म वाले और बे इल्म वाले कभी एक साथ नहीं हो सकते। बागमारी साहब ने कहा, मुल्ला साहब ने कहा, आज मुसलमान जलील हैं, ख्वार हैं, जेलों से नौजवान भरे हैं। इसका अंजाम सिर्फ, इसका नतीजा यही वजह है कि ये आज हम इल्म से बहरावर हैं। कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मा अलक़, अल्लाह ताला ने कुरान में पहली आयत जो नाजिल फरमाई, ना नमाज था, ना ज़कात था, ना फितरा, ना अखलाक, कुछ भी नहीं था, सिर्फ इल्म हासिल करो। आप कुरान का सर्वे करें तो मालूम होता है कुरान में सबसे ज़्यादा आयत नाजिल में है 751 मरतबा इल्म के ताल्लुक से हासिल, और 757 मरतबा नमाज।
باقی تمام 200-250 دن ہوتے. تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ جو ہے علم کے تعلق سے جو نماز سے ذرا 2-3 اعداد نیچے ہے. تو اس کا مطلب معلوم ہو کہ علم سے ہی دنیا میں نظام قائم ہو سکتا ہے، انسانیت کی تکمیل اور ارتقاء بشر کا اور تعمیر انسانیت ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ وجہ کہ آج سے جو ہے 40 سال پہلے ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. ساری دنیا کے نقشے میں نقطے کی حیثیت رکھنے والا بنی اسرائیل، جسے بھی اسرائیل کہتے ہیں، ساری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 150 کروڑ ہے، جبکہ بنی اسرائیل ساری دنیا میں پہلے ان کی آبادی صرف 1 کروڑ ہے. کہاں 150 کروڑ، کہاں 1 کروڑ. 40 سال پہلے وہاں کے سیاستدان اور محرومان و راہبیوں نے ایک جماعت جمائی، ایک اعلان کیا کہ دنیا کے تمام بنی اسرائیل ہیں ان سے چندہ اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کر کے کعبہ اور مدینہ کی طرح ایک ایسا گرجا گھر، ایک ایسی مندر، ایک ایسا عبادت کا قائم کیا جائے تاکہ سارے اسرائیل جو ہے وہاں آ جائے اور دنیا کے لیے ایک بہترین جو ہے عبادت ثابت ہو. دنیا سے چندہ اکٹھا گیا تو ان کا قیاس بھی نہیں تھا کہ چندہ اس قدر تھا کہ اس چندے میں ساری دنیا کو غلام بنایا جا سکتا تھا. وہاں کے سیاستداں حیران ہو گئے، اتنی بڑی رقم قیاس سے بھی دور تھا. تو ان وہاں کے سیاستدانوں نے اس چندے کو اٹھا کر علماء کرام کے حوالے کر دیا، اساتذہ کرام کے حوالے کر دیا. اس چندے کا کیا کرنا، ہمارا نصب تھا، ہمارا مقصد تھا کہ ایک بڑا گرجا گھر عبادت خانہ تعمیر کرنا تھا، لیکن اب ہمارا من بدل گیا ہے، آپ تصفیہ کیجئے اس رقم کا کیا کیا جائے. تو وہاں کے علماء اور اساتذہ کرام جو ہے ایک تجویز پیشی کہ اس رقم سے ہم عبادت گاہ نہیں ایک تعلیمی سینٹر قائم کریں گے جو عالمی طور پر ہوگا. اور انہوں نے ایک ویژن قائم کیا کہ ہم 50 سال کے اندر دنیا میں حکومت کریں گے، ان کے ذہنوں پر، ان کے دلوں پر، یہاں تک کہ ہر چیز پر ہماری حکومت ہوگی. انہوں نے بھی اس ویژن پہ کام کیا، مدرسے قائم کیے، ایک ایسا تعلیمی نظام برپا کر دیا. آج نقطے کی حیثیت رکھنے والا اسرائیل ہر شے پہ اس کا حکم ہے. ہر شراب لیجیے، دوائیں لیجیے، ملبوسات لیجیے، گھر کی چیزیں لیجیے، ٹیکنالوجی کے میدان، ہر میدان میں اسرائیل آگے ہے. ہم 150 کروڑ آج ذلیل و خوار ہیں. کیوں؟ لیکن ایک سروے ایسا ہے، اس لیے کہ آج حال ہی میں جو ہے میں سے ایک عرب امارات سے ایک سروے ہوا. اس سروے میں بتایا گیا کہ جو ہے ہمارا حال اس لیے ہوا کہ ہمارا جو مطالعہ ہے کتنا ہے. دیکھیے یوروپی اور اسرائیل کے مقابلے میں یوروپی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، ایک سال میں جو ہے یوروپی لوگ تقریباً 35 سے 40 کتابیں پڑھتے ہیں، ایوریج، ورلڈ ایوریج. اور مسلمان کا ایوریج، ایک مسلمان سال میں صرف 2 کتاب پڑھتا ہے. یہ ہمارا سروے ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن کتاب، سمری کتاب کون سے ہو؟ بائبل ہے پڑھی جانے والی، مگر سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی وہ قرآن ہے. آج ذلیل اس لیے کہ جو ہے ہم نے جو ہے دین کو چھوڑ دیا، دین اور سیاست کو الگ کر دیا. جب دین سے سیاست الگ ہو جاتی ہے تو رہ جاتی ہے چنگیزی باقی. لہٰذا ابھی بھی حال میں جو ہے شکیل باغانی صاحب کا ایک واقعہ پیش کیا، انہوں نے ایک آواز اٹھائی، تمباکو نویشی، نشیلی جو پدارتوں کا جو ہے اشتہار ہو رہا تھا، اس کا استعمال ہو رہا تھا. انہوں نے آواز اٹھائی تو ان کے پیچھے لبیک کہا کئی نوجوانوں نے. ایک افغانستان جس سے امریکہ بھی تھرا جاتا ہے، وہاں پر جب 17-18 سال تک روسیہ اور امریکہ ان کو شکست دے نہیں سکا، تو ایک لڑکی ملکہ زئی 11 سال 8 جماعت میں پڑھتی تھی، اس نے اس طالبان کے خلاف آواز اٹھائی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے تعلق سے آواز اٹھائی تو طالبان نے اس کے سر میں 2 گولیاں مار دی بس میں چڑھ کر. ایک گولی پیشانی کے بازو چلی، ایک گولی اس کی آنکھ پھاڑ کر باہر نکل گئی. جیسے ہی گولی لگی لڑکی نیچے گر گئی تو امریکن پولیس نے اس کو جو ہے محفوظ کیا، فوراً کینیڈا ٹرانسفر کیا. کینیڈا کے صدر نے اسے گود لے لیا اور قسم کھا لیا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے، اور وہاں کینیڈا کی شہریت دے کر اسے ایسے تیار کیا گیا کہ اس لڑکی نے تعلیم پا کر UN بین الاقوامی آرگنائزیشن، جہاں پر بڑے بڑے صدر وزیر اعظم کو بھی موقع نہیں ملتا، اس ملکہ زئی کو جو ہے UN میں تقریباً 30 منٹ کا لیکچر کا موقع دیا. یہ تاریخ کی حصے میں آج تک کسی پریزیڈنٹ نے، کسی وزیر اعظم نے 15 منٹ سے 20 منٹ سے زیادہ لیکچر نہیں دیا. اس بچی کو 30 منٹ کا سبق تقریر دینے کا جو موقع دیا گیا. تو ایک لڑکی کی آواز پر طالبان بھی جو بے بس ہو جاتا ہے. کہ شہلگی باغمارے صاحب، ہمارے بانگی صاحب ہیں، ہمارے شبیر پردی صاحب ہیں، ہمارے محمد انات کمیٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے معیشت سے، دولت سے، طاقت سے. لیڈرشپ کوالٹی ہے. اگر ایک طاقت
محمدیہ نعت کمیٹی کی پیچھے رہ گئی، تو میں محمدیہ نعت کمیٹی کو جو ہے یہ یہاں سے اسٹیج سے ایک میسج دینا چاہوں گا، ہمارا جو محدود دائرہ ہے اسے نکل کر ذرا اسٹڈی سینٹر کی طرف نکلیں، ہم تعلیم کو جو ہے عام کریں، ہمارے تعلیمی مراکز کو جو ہم رہنمائی کریں، ان کو فوقیت دیں، ان کو ایک قوت دیں، تاکہ ہم میں بھی سقراط، بقراط، افلاطون، مولانا روم اور شیرازی، الہیثم، الخارجی جیسے لیڈران پیدا ہو سکے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جو آج اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، افلا تعلمون، افلا تدبرون، افلا تفکرون، قرآن میں 20 مرتبہ آیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کبھی تنبیہ کے انداز میں، کبھی شکایت کے انداز میں، کبھی غصے کے انداز میں، کبھی ناراض کے انداز میں، تم پڑھتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں، تم تدبیر اور اختیار کیوں نہیں کرتے، تم تدبر سے کام کیوں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بار بار لڑتا ہے، لیکن ہماری جو ہے عقل اس طرف دوڑتی نہیں۔ لہٰذا میں چاہوں گا اس اسٹیج سے کہ میں آج اس کمیٹی نے مجھے موقع دیا، اس ناچیز خاکسار کو جو یہ عزت بخشی، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا، عزت اور ذلت دینے والا ہی ہے۔ محمدیہ نعت کمیٹی کو رفقۂ اقدار میں میرے لیے یہ احترام، یہ عزت اللہ کی دین ہے۔ میں شکر گزار ہوں محمدیہ نعت کمیٹی کا اور یہ صاحب فطری صاحب تمام کی دست سے تمام بچوں کو کلپ پیڈ تقسیم کیا جائے۔ جناب صاحب اقبال قاضی صاحب، صاحب جہانگیر رفیقی صاحب، جہانگیر رفیقی صاحب کے دست مبارک سے بچوں کو کلپ پیڈ کیا جائے۔ ایک کے بعد دیکھ رہے آ جاؤ بچے۔ جناب دھونی صاحب کے دست مبارک سے جناب ابوبکر مومن صاحب، جناب ابوبکر مومن صاحب کے دست مبارک سے بچوں کو کلپ پیڈ کی تقسیم ہوگی۔ جناب دھونی صاحب کے دست مبارک۔ بہت بہت شکریہ۔ مزمل اللہ صاحب، آصف صاحب، اسحاق چٹرگی صاحب، آصف بانگی صاحب، سراج جمکھنڈی صاحب، آپ یہ پیر احمد صاحب، پیر احمد صاحب کے دست مبارک سے بچوں کو کلپ پیڈ۔ ایک اور ہمارے مستان بھائی سراج سر 2 منٹ آپ بیٹھے رہے بچوں۔ ویسے صورت میں میرے اپنے چھوٹے بھائی جنہوں نے بڑے پرجوش انداز میں ہمارے اپنے اغراض و مقاصد کو بیان کرنے کی کوشش میں کوشاں رہے، ان کا تعاون دینے کے لیے ہمارے اپنے ECO ہندی زندگی چرچان میرے اپنے چھوٹے بھائی جناب نواز خان پٹھان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ مالی امداد کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں ان لوازمات کو لا کر جو ہے نا ہم لوگوں کی ہمت افزائی کی ہے۔ ویسے میں چاہتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں جس طرح سے ہمارے مہمانان بز میں جن جذبات اور جن خواہشات کو مد نظر رکھتے ہم لوگوں کی اذان کو بنانے کی کوشش میں کوشاں رہے، ویسے انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور میں بالخصوص ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے تمام تر مصروفیات کو بالا طاق رکھ کر اس جلسے میں رونق بخشی، اور اتنے مصروف ترین شخصیات جب کہ ملا صاحب یہاں بیٹھے تھے تو ایک جلسہ تو ہمارے اپنے محلے میں تھا، دونوں بھائی جو ہے نا اسی کام میں منہمک رہے، لیکن وقت مقررہ پر اپنی حاضری بھی دی۔ اب ایسے افراد بھی ہیں جن کے وہ بغیر جو ہے نا کام پورے پائے تکمیل پہنچنا ناممکن ہے، لہٰذا وہاں اجازت لیتے ہوئے بھی ملا صاحب نے جو ہے نا وہ چلے جا چکے۔ بہرحال یہاں تمام مصروف ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بیٹا ابھی جس انداز میں بتا دیا شکیل بھائی نے کہ لڑکیاں جو ہے نا اس مقام پر والدین کو بھی جو ہے نا آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی نسبت کا جہاں بھی معاملہ آ رہا ہے تو اپنے سوچ سمجھ کر بیٹے آپ لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے، خاص کر لڑکوں کی ذمہ داری، اگر آپ اپنے طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آنے والے زمانے میں جو آپ کے والدین خواب سوچیں وہ شاید پائے تک مل نہ پہنچ پائیں گے۔ بہرحال علم کے دریا دولت سے آپ مالا مال ہو جائیے، ایسے ذی فہم اساتذہ آپ لوگوں کی رہبری کریں گے۔ محمدیہ نعت کمیٹی کے تمام ذمہ داران آپ کے ساتھ ہیں، بزم ارباب اردو آپ کے ساتھ ہیں، کالی مسجد جماعت کے تمام ذمہ داران آپ کے ساتھ ہیں،
हमें वादा करते हैं शकील भाई कि आने वाले एग्जाम में मोहम्मदिया नात कमेटी का ये हमें महदूद हो गया, हमारे डोनी साहब ने बता दिया कि इंशाल्लाह ये दामन को हम वसी करेंगे। हर तरफ से जो हमें माली इमदाद की ज़रूरत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से मुसलसल जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अपने ज़ाती असासे से हम कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का ताउन हासिल कर रहे हैं, चाहे वो दामे दर में सुखने हो। हमारे अपने यहाँ वजीफ़ा मीर मौलम भी हैं, इंजीनियर हैं, बानी हैं हमारे अपने। इन लोगों का यही ख्वाब है कि हमारी ये दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक खाका तैयार होगा, सालाना एक तखमीना तैयार होगा। डोनी साहब भी ज़्यादा खुद जिस तरह की ख्वाहिश आप लोगों के सामने जाहिर की, वो ज़्यादा खुद भी एक रुकन है हमारे अपने मोहम्मदिया नात कमेटी के। इनके खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब इलियास साहब को, जिन्होंने बेहतरीन तरह से जो है ना निज़ामत की जिम्मेदारी अपने सर आयद कर ली। मेरा अपना छोटा भाई जनाब मुजम्मिल बुल्ला ने आने वाले मेहमानों के लिए इस्तक़बालिया कलमात, बिलखुसूस अगर ये शख्स जिक्र न करूँ तो मैं अपनी ज़ात पे जुल्म करने के मज़दाक है। सिर्फ एक बात इसके गुज़ार करें तो ये बंदा, ये नौजवान जो है ना जोश धाड़े मारते हुए आता है और अपने तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक रख कर इन्हीं इजलास को कायम करता हो, कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना छोटा भाई ये अम्बर खाने, अबू बकर अम्बर खाने है। बहरहाल मुबारकबाद के काबिल ऐसे नौजवान हैं। बेटा सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि जिस तरह से यहाँ बता दिया कि इजराइल जिसे हम ये कह रहे हैं, आज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहूदी कौम मुट्ठी बराबर है। अल्लामा इकबाल का शेर भी आप लोगों को याद होगा, उकाबिर रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। समझ में आ रही बात? ये क्यों लिखा, कब लिखा, अपने असातिज़ा से आप पूछिए। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आप लोगों के सामने ये तमाम वाक़े को बिठाऊं। बहरहाल मुट्ठी पर रहने वाले यहूदी, वो मासूम से बच्चे इल्म के तरिया दौलत से माला माल होकर आज पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहे हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने अपने तौर पर इस शेर को लिखा, क्योंकि अल्लामा इकबाल का एक ये था आइडियल परिंदा जो था वो शाहीन था। लेकिन वहाँ उन बच्चे को देखते हैं यूरोप की सरजमी पर, अरे मैं तो अपने कौम में शाहीन को तलाश रहा हूँ, यहूद के घर तो उकाब पनप रहे हैं, उकाब पल रहे हैं। उकाब भी एक परिंदा है। अभी जो मंदर जवाला के जुमलों में आप लोगों के सामने बात बिठा दिया, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में। समझ में आ रही बात? ऐसे आप अपनी उकाबी रूह रखे बेटा, आसमान की बुलंदियों की तरफ तवज्जो रखो। APJ अब्दुल कलाम ने भी ख्वाब के मुतालिक बता दिया, ख्वाब ऐसे देखो जो सोते हुए जो देख रहे वो ख्वाब नहीं, वो ख्वाब देखो जो आप सोने न दें, जीते जी आप वो ख्वाब देखो, वो पाए तकमील पहुंचेंगे। आपके असातिज़ा का मैं मरहून मिन्नत हूँ बेटा, आपके हक में दुआ करेंगे कि आपकी ज़बान में सलासत रवान गया है और अपने बेहतरीन औकात को जो दो इन बच्चों के खातिर दिया, और ये मासूम बच्चों के ज़हन में एक मरतबा आपकी शख्सियत बढ़ गई, ताहयात ये लोग आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। मैं बिलखुसूस इस मौके पर मेरे अपने छोटे भाई सिराज जमखंडी साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मोहम्मदिया नात कमेटी के पूरे अरकान हमारे जहन में न लाए न सही, लेकिन एक शख्स ने अपने तौर पर लाकर हम तमाम को जोड़ने की कोशिश में कोशिश रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने अपने मसरूफियात में जुड़ जाने के बावजूद भी सिराज जमखंडी साहब इस बार खैर में जुड़ते रहें और हमेशा जुड़ते रहें। हम वादा करते हैं तमाम सेक्रेटरी, हमारे अपने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हमारे अपने बानी और जितने भी हमारे मोहम्मदिया नात कमेटी के जिम्मेदारान हैं, हम आपका हमेशा ताउन करेंगे और ताउन करते रहेंगे और इससे फायदा पहुँचाने के हाथ में कोशिश करेंगे। मजीद फिर एक मरतबा आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि इल्म की दलिया दौलत से आप माला माल हो जाए, वालिदैन के ख्वाबों को पाए तकमील पहुँचाने में आप कोताही न करें। बहरहाल मैं ममनून मशकूर हूँ। इस काबिल तो नहीं था कि इतने बड़े इजलास में बहैसियत सदर के मेरे अपने छोटे भाई की ये हिमाकत है कि आप सदर जलसा बने रहें। वैसे किसी जलसे का सदर का बनना, घर का बड़ा बेटा बनना, ये बड़ा मुश्किल काम है। समझ में आ रही बात? ये जिम्मेदारी आपकी मोहब्बतों के खातिर मैंने कबूल किया। मैं ममनून मशकूर आप तमाम का। लिहाजा आप बच्चों के हक में बस यही दुआ करूंगा कि आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। हमारी शादमानियाँ और कामराने हमेशा आपसे वाबिस्ता है और वाबिस्ता रहेंगे। फिर एक मरतबा आप सभी को मुबारकबाद देते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।